नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी मैथमेटिक्स की रिवीजन क्लास में। क्लास 10th के रिवीजन हम कर रहे हैं। आज सेकंड डे। जैसे कि आपसे बात हुई थी, हम डेली कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे जिससे आप मिनिमम तैयारी से मैक्सिमम अच्छे से मार्क्स कर सकें बोर्ड एग्जाम में 10th क्लास में। आइए, तो डे सेकंड बस आपको आपका रिवीजन करते रहना है, प्रैक्टिस करनी है। एक बार यहाँ से समझिए, फिर अपने आप प्रैक्टिस कीजिए इसी कार्य को 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद कुछ समय बाद शाम को, सुबह, जैसे भी समय मिले, फिर से आधे घंटे की प्रैक्टिस कीजिए। तो मात्र ऐसे इस 1 घंटे के अभ्यास से आप बहुत अच्छे से 10वीं कक्षा के परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स, देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? A and B are two prime numbers, co-prime numbers. What will be the least common multiple? And the third question, highest common factor of two consecutive number and the least common multiple of two consecutive number. बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आइए एक बार सबको इनको एक साथ करते हैं। Co-prime numbers means numbers which have no common factor other than 1, because 1 is always factor of every number. Therefore, no common factor other than 1. These are the co-prime number. There is no concern co-prime numbers with prime numbers. So, don't be confused with prime numbers and co-prime numbers. Co-prime numbers just 2 and 3, 2 and 5, 1 and 5. Yes, this is also the pair of co-prime numbers, because there is no common factor between these two numbers other than 1. 4 and 9, actually these are the composite number itself, but when we talking about 4 and 9, these are co-prime numbers. This is the difference between the co-prime and prime. 9, 10, no doubt these are the consecutive numbers and co-prime numbers. It means all consecutive numbers are always co-prime numbers. Remember it. Therefore, the HCF of these numbers is always equal to 1. Yes. So, first question का आंसर भी 1 है, and the answer of third question is same as the HCF of consecutive numbers is always 1. And LCM, whether they are co-prime or composite co-prime or consecutive numbers, the LCM is always the multiplication of the numbers, because there is no common factor. Therefore, the LCM, least common multiple, is always the product of both the numbers. Therefore, the LCM is here A and B. If A and B are two numbers, then LCM must be AB. In the fourth question, also the LCM must be AB, but if A and B are not given, only language is given, then answer will be product of the numbers, whatever the numbers are there. Fifth question, if HCF is given, then we have to find the LCM of two numbers. We have a result regarding this. The HCF and LCM product must be equal to the product of the number itself. This is given 28. LCM we have to find. A and B means 140 and 96. Therefore, LCM of these two numbers is equal to 140 into 96 and divided by 28. ये ट्रांसपोज किया, 28 इधर चला गया. Now you can simplify 28 into 5, 140. Therefore, 5 into 96. This is your answer. Next question, after how many decimal places the decimal representation of this will be terminate? It's a very important question. 1331 upon 352. So, first of all, we have to see whether it is divisible by any number or not. Let's take some factorization of 352. 2 से divide होगा, yes. Again by 2. Then again by 2. आप ऐसा इजीली डिवाइड कर सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका. In the first side we may call 2 into 2 into 2 into 2 into 11, and if 11 is in the denominator, then this is non-terminating number. But because after reducing in lowest form, then we have to see what is in the denominator. Here
In the numerator, 1331 can be written as factorization as 11 into 11 into 11, therefore 11 1 11. ये आप ऐसे solve करें. Now in denominator only 2 is there, no doubt this is terminating decimal, and after how places of decimal, this is the maximum power of any number in denominator. This is 1 2 3 4 5. We don't need to calculate thoroughly, but only count this 1 2 3 4 5. Then answer is 5. So after 5 places, and next question, because these are the 2 and 5, no doubt terminating decimals और lowest form में कुछ बनता नहीं है. The maximum power is 4, therefore the answer is after 4 place of decimal we can write this. So decimal representation terminates after 5 decimal place, and यहाँ पर हो जाएगा decimal representation terminates after 4 decimal place. This is your answer. Next question. और 7th हो गया आपका. 7th क्वेश्चन इधर था. This is the 7th question. After how many decimal places the decimal representation of this. Both questions are same, only numbers are different. Now match the column. Some numbers are given, some terms are given. We have to match the column, which one is right, which one is correct combination. Let's write. Okay. Now 12.23424523456. This is non-terminating because that dot is given. Never terminate. Non-terminating, but repeating or non-repeating. Now this is the question. 234 245 234 56. साउंड ही आपकी डिफरेंट हो गई. आप देखें तो नंबर्स भी डिफरेंट है. इट मीन दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, और यू कैन से नॉन रिपीटिंग. 0.01010111 oh non recurring, but this is terminating because there is no dot, therefore terminating decimal. Now this question, first we have to reduce it in lowest form. जितना simplify आप कर सके उसे करके लिखें. 6 1 जा 6, ये कैंसिल हो गया. Now again there is 13 and 6 and 2 5. oh तो ये terminating decimals नहीं है because इधर 6 हो गया. अगर आप और भी डिवाइड करते हैं 2 into 3 लिखेंगे तब भी 3 रहेगा. जब जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 की अलावा कोई और अगर फैक्टर होता है, नंबर होता है, देन इट इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग. अगर ओनली 2 और 5 होगा तब आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर ये हो जाता है. इस तरह से आप मैच द कॉलम करेंगे. 9th क्वेश्चन. स्टेटमेंट गिवन है कुछ असर्शन एंड रीजन की. हमें देखना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट राइट है, करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है. या अगर राइट है तो क्या उनका आपस में उस रीजन से कोई लेना देना है कि एक वाले स्टेटमेंट को दूसरे से हम कहीं जस्टिफाई करते हों या उसको एक्सप्लेन करते हों. ये आपको देखना होता है. पढ़ते हैं. यूनिट डिजिट ऑफ 8 रेज़ टू पावर n विल बी 0. 8 की पावर कितनी भी करेंगे, 8 फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें 64, बिकॉज 8 का फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2. 0 आने के लिए 10 आना जरूरी है, और 10 कब आता है, जब 2 इंटू 5 होता है. इट मीन्स जब तक किसी नंबर में 5 नहीं होगा विद ए इवन नंबर, 5 इंटू 2 हो, 5 इंटू 4 हो, तब तक हम 10 नहीं बना सकते, तब तक 0 भी नहीं बनेगा. इट मीन्स ये कभी भी 0 नहीं होगा. तो ये तो गलत हो गया, करेक्ट नहीं है. दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं. ईच कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स. यस, ये तो सही है. आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो बेसिक आप पढ़ते हैं वही है, आपने याद भी किया होगा. तो ये सही है, लेकिन इनका आपस में कोई लेना देना भी नहीं है, और ऊपर वाला आपका गलत भी है. तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 5 जो भी है, तो ABCD में से देखना कौन सा सही है. बोथ A एंड R ट्रू नहीं है, बी भी नहीं होगा. सी में A इज ट्रू बट R इज फॉल्स. नो, A तो ट्रू है ही नहीं, तो आपका डी ऑप्शन सही है कि A इज फॉल्स बट R इज ट्रू. तो ये आप कह सकते हैं 9th में A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू. 10th क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज देयर प्रोडक्ट.
यस, ये तो अभी हमने पढ़ा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो एलसीएम होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये सही है, अभी हम पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट सेकंड, एचसीएफ of two numbers and LCM of two numbers is always equal to the product of these numbers। yes, ये भी हमने क्वेश्चन किया, आप जानते हैं कि ये भी इक्वल सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अब देखना ये कि क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज ए और बी दोनों में बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू आपको मिलेगा जब भी ऐसे ऑप्शन होंगे। बट आपको देखना है वेदर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट। मीन्स जो ए है उसका रीजन क्या आर है, मीन्स जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है क्या वो नीचे वाली स्टेटमेंट के कारण है? नहीं, ये अलग है, वो अलग चीज है, इसका इससे लेना देना नहीं। इसका मतलब ट्रू तो है बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो ये आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th and 12th, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 2 और 3 मार्क्स का आपका आ सकता है। कोई एक हम कर लेते हैं, दूसरा आप सेम एज इट इज लिखेंगे, बस नंबर बदलते हैं। तो अपने हाथ से एक बार प्रैक्टिस जरूर करें लिखने की। आइए, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। हमें प्रूव करना है इरेशनल है, तो हम इसका उल्टा ऑन द कॉन्ट्रेरी ऐसा लिखते हैं भी। आप चाहे सिंपल लैंग्वेज में लिखें या लिखें ऑन द कॉन्ट्रेरी अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल, और आप सीधा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, रेशनल है तो, और a एंड b मस्ट बी को प्राइम इंटीजर्स and b is not equal to 0। this is the technical, a and b दोनों को प्राइम होंगे, इंटीजर्स होंगे, और b 0 नहीं होना चाहिए। now squaring both side, then 5 is equal to a square upon b square। this can be written as 5b square is equal to a square। now a square is a number which is the multiple of 5। 5b square मतलब वो 5 का मल्टीपल है, और जो नंबर 5 का मल्टीपल होगा वो उससे डिवाइड भी होगा। तो आप लिख सकते हैं कि a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, और यू कैन से 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आता, हमें थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं इसे कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि a स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया जा रहा है। इट मीन्स 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, और 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 5 a को भी डिवाइड ही करेगा। देयरफॉर 5 डिवाइड्स a। ये आपकी एक थ्योरम में चाहे तो आप उसका नंबर लिख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ नंबर डाल दिया, कहीं आगे यूज करना हो तो हम इन इक्वेशन को यूज करेंगे। नाउ 5 डिवाइड्स a, इसका मतलब a इज द मल्टीपल ऑफ 5। यस, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5 एनी नंबर वट एवर द c इज अदर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर वट एवर। Therefore, a square is equal to 25 square। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से वही करना है, फिर से वो देखना है कि कौन किससे डिवाइड करता है। बट नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। दिस वन a स्क्वायर 5b स्क्वायर, तो जहाँ a स्क्वायर आप 5b स्क्वायर लिख देंगे। नाउ 5 5 जा 25, इधर ले जाएं, 5c स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5। इट मीन्स 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। चाहे देखने के लिए आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स b, इसको भी आप नंबर डाल सकते हैं। देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट ए कॉमन फैक्टर 5, बिकॉज 5 डिवाइड्स b एंड हियर 5 डिवाइड्स a। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड दिस इक्वेशन वट एवर द 3 आप चाहें तो लिख दें इसे, वी कैन राइट 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। But in the starting, we have already declared a and b are co-prime integers। oh, तो हमने अपनी ही बात को यहाँ पर wrong कर दिया। हम कह रहे हैं a and b are co-prime, but here a and b have a common factor 5 and co-prime means there is no common factor। तो ये this is called the contradiction, कि हम एक बात कह रहे हैं उसके बाद दूसरी बात फिर से वो गलत हम खुद ही कह रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं contradiction हुआ, और ये contradiction क्यों हुआ? It means our assumption was wrong। बस यही आपको लिखना और कुछ नहीं। a and b are co-prime integers and now we are saying a and b have least common factor 5। it means this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational। therefore conclude that root 5 is irrational। करते रहिए ऐसे अच्छे से काम, फिर मिलते हैं, नमस्ते।